اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ دن کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا جب فارسی فوج کے لیے کھانا تیار ہوا۔ لشکر بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا۔ جب لشکر کو اطلاع دی گئی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے اور لشکر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، این اسی وقت گشتی سنتریوں نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کی فوج سر پر آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کی خبر قبل از وقت نہ ہو۔ انہوں نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں ہڑبونگ سی بپا ہو گئی۔ سالار اور کماندار چلا چلا کر دونوں لشکروں کو جنگ کی تیاری اور صف بندی کا حکم دے رہے تھے، مگر لشکر کے سامنے جو رنگا رنگ کھانے رکھے جا رہے تھے انہیں لشکر چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ تبری کی تحریر شاہد ہے کہ لشکر سے بڑی بلند آواز اٹھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے تک وہ کھانا کھا لیں۔ بیشتر سپاہی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج جنگی ترتیب میں بالکل سامنے آ گئی۔ یہ فوج حملے کے لیے بالکل تیار تھی۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں میں وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے شکست کھا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹتے دیکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ڈر گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے واویلا بپا کر دیا، کھانا چھوڑ دو، ان مسلمانوں کو موقع نہ دو، یہ کاٹ دیں گے، مار دیں گے، تیار ہو جاؤ۔ وہ کھانا چھوڑ کر لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ باقی لشکر اپنے سالاروں اور کمانداروں کا بھی حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ سب بھوک سے مرے جا رہے تھے، لیکن جنہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے ان کی خوفزدہ ہڑبونگ دیکھ کر سارا لشکر کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مدینے کے مجاہدین اور آگے چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں احکام دے رہے تھے۔ دشمن نے ابھی گھوڑوں پر زینے کسنی تھی اور سارے لشکر کو زرہ پہننی تھی۔ جابان نے مہلت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس دور کے رواج کے مطابق عیسائیوں کے سردار عبد الاسود اجلی کو ذاتی مقابلے کے لیے آگے کر دیا۔ عبد الاسود نے اپنے لشکر سے آگے آ کر مسلمانوں کو للکارا، کس میں ہمت ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے گا؟ جسے میری تلوار سے کٹ کر مرنے کا شوق ہے وہ آگے آ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ میں ہوں ولید کا بیٹا، میں ہوں جس کی تلوار تجھ جیسوں کے خون کی پیاسی رہتی ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر رہ اور اپنا نام پکار۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں ہوں عبد الاسود اجلی، نام اجلان کا بلند ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اس کے قریب سے گزر گیا، آگے جا کر مڑا اور خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار تان لی۔ عبد الاسود نے بھی تلوار نکال لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوڑتے گھوڑے سے اس پر وار کیا، لیکن یہ وار خطا گیا۔ عبد الاسود نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گھوڑا دوڑا دیا اور ایک بار پھر دونوں سوار آمنے سامنے آئے۔ اب کے عبد الاسود نے وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وار اس طرح روکا کہ ان کی تلوار عبد الاسود کی تلوار کے دستے پر لگی جہاں اس عیسائی سردار کا ہاتھ تھا۔ اس کے اس ہاتھ کی 2 انگلیوں کے اوپر کے حصے صاف کٹ گئے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ عبد الاسود نے بھاگ کر نکلنے کی بجائے بلند آواز میں کہا کہ اسے برچھی دی جائے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کی طرف آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی پیادہ تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے بچنے کے لیے برچھی اپنے سردار کی طرف پھینکی۔ خالد رضی اللہ عنہ پہنچ گئے تھے۔ برچھی آ رہی تھی جسے خالد رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر سے گزرنا تھا۔ عبد الاسود نے برچھی پکڑنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی کو تلوار ماری۔ برچھی کٹ تو نہ سکی لیکن ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ برچھی راستے میں رک گئی اور گر پڑی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کا رخ عبد الاسود کی طرف کر دیا۔ اب یہ شخص وار سے صرف بچ سکتا تھا، وار کو روکنا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بغرض تماشا اسے ادھر ادھر بھگایا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ایک سالار نے بلند آواز سے کہا، ابن ولید اسے ختم کرو، دشمن تیار ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کی رفتار تیز کر کے اور اسود کے قریب سے گزرتے تلوار برچھی کی طرح ماری۔ عبد الاسود نے گھوڑے کے ایک پہلو پر جھک کر بچنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے دوسرے پہلو میں اتر گئی۔ عبد الاسود سنبھل گیا لیکن وہ بھاگا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اب پیچھے سے آ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اس طرح کٹی کہ سر ڈھلک کر ایک کندھے پر چلا گیا۔ گردن پوری طرح نہیں کٹی تھی۔ ادھر عیسائیوں کا سردار عبد الاسود گھوڑے سے گرا اور دریائے فرات کی طرف سے بے شمار گھوڑوں کے دوڑنے کا شور سنائی دیا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آ رہے تھے۔ اس پہلو پر عیسائیوں کا لشکر تھا۔ گھڑ سواروں کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔
घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की बर्छियों ने उन्हें छलनी करना शुरू कर दिया। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी, वो मुकाबले के लिए संभल न सके। इस शोरगुल में से एक ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूँ हारिसा का बेटा मुसन्ना, हम भी तुम में से हैं, मैं हूँ मुसन्ना बिन हारिसा। ये मुसन्ना का सवार दस्ता था जिसे उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापामार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का ये तरीका बेहद जरूरी था। वजह ये थी कि ये मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था, उसके दाएं और बाएं दरिया थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही कह दिया था कि उस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकते। अपने सालारों से उन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ता दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को इसी किस्म के हमलों की तरबियत दे रखी थी और अक्सर उसकी मशक करवाते रहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। उन्होंने पहलुओं के दस्तों को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फौज की क़यादत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद की। पहलुओं के सालारों आसिम और अदी ने भी अपने अपने दस्ते के साथ जाकर खुद हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दम थे, मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को ये फायदा मिल गया कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपीय मौरखों ने साफ लिखा है कि फारिस की फौज ज़हनी तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये फौज भूखी थी और उसे वो खाना छोड़ना पड़ा था जो उसके लिए खास तौर पर पकवाया गया था। इस खाने के लिए तो उन्होंने मुसलमानों की भी परवाह नहीं की थी। मुसलमानों को इस पहले हमले में खून की खासी कुर्बानी देनी पड़ी। आतिश परस्तों ने तैयार न होते हुए भी कई मुसलमानों को घायल कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे और दूसरे दस्तों को आगे बढ़ा दिया। आतिश परस्तों को तादाद की इफरात का फायदा हासिल था। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 4-4, 5-5 आतिश परस्तों और ईसाइयों से था। दुश्मन को इस फायदे से महरूम करने के लिए मुसन्ना का सवार दस्ता सरधड़ की बाजी लगाए हुए था। उसने सवारों को मुताद्दिद टोलियों में तकसीम कर दिया था। ये टोलियां बार बार घोड़े सरपट दौड़ाती बगुलों की तरह कभी पहलू से कभी अकब से आती और कुफार के कई आदमियों को बर्छियों से काटती गुजर जाती। इस तरह दुश्मन की तवज्जो अपने अकब पर भी चली गई, लेकिन मुसन्ना के सवार रुक कर नहीं लड़ते थे। उन सवारों ने दुश्मन की तरतीब दरहम बरहम किए रखी। मुसन्ना की इस कार्रवाई से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा फायदा उठाया। मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देने लगा, बनु बकर और जरतुश्त के पुजारियों, जमकर लड़ो, मदाइन से बहमन जाज़ोया का लश्कर आ रहा है। ये ऐलान बार बार सुनाई देता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये ऐलान कुछ परेशान कर रहा था। उन्होंने पहलुओं के सालारों को पैगाम भेजे कि हर तरफ ध्यान रखें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने महफूजा के दस्तों को भी खबरदार कर दिया कि अकब से हमले का खतरा है। तकरीबन तमाम मौरखीन ने लिखा है कि बहमन जाज़ोया मदाइन से कोई लश्कर नहीं ला रहा था। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो जाबान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुंच सका। एक मौरख याकूत ने लिखा है कि बहमन जाज़ोया अपने लश्कर में शामिल होने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में उसे उस लड़ाई से भागे हुए कुछ सिपाही मिल गए जिन्होंने उसे उलैयस की जंग का हाल सुना दिया। जाज़ोया आगे आने की बजाय वहीं रुक गया। उसका मकसद ये था कि शिकस्त उसके खाते में न लिखी जाए। बहरहाल इस ऐलान ने कि मदाइन से जाज़ोया फौज ला रहा है, मुसलमानों में नई रूह फूंक डाली। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले पहले इस लश्कर का सफाया कर दो, लेकिन आतिश परस्त और ईसाई चट्टानों की तरह डटे हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ तो करते ही थे, लेकिन ये पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे, जमीन पर घुटने टेके और हाथ बुलंद करके दुआ की, खुदाए जुल जलाल हिम्मत अता फरमा कि हम इस लश्कर को नीचा दिखा सकें। मैं अहद करता हूँ कि मैं तेरे दीन के दुश्मनों के खून के दरिया बहा दूंगा। अब के खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नए जोश व खरोश से हमले करवाए। पहलुओं के दोनों सालारों ने दुश्मन को नीम दायरे में ले लिया। अकब से मुसन्ना बिन हारिसा के सवारों ने अपनी छापामार कार्रवाइयां जारी रखी। 2-3 घंटे बाद साफ नजर आने लगा कि दुश्मन के कदम उखड़ रहे हैं। चूंकि दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, इसलिए उसके मरने और जख्मी होने वालों की तादाद भी ज्यादा थी। ये हालत देखकर ईसाइयों और आतिश परस्तों के वो लोग जो पहली 3 जंगों से जिंदा भाग निकले थे, हौसला हार बैठे और जाने बचाने के लिए मैदान जंग से खिसकने लगे। फिर लश्कर के दूसरे लोग भी पीछे हटने लगे। ये सूरत देखकर मुसलमानों ने अपने हमलों में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। फिर अचानक यूं हुआ कि कुफार ने भागना शुरू कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम लश्कर में कासिद इस पैगाम के साथ दौड़ा दिए कि ताक़ुब करो,
और बुलंद आवाज में ऐलान भी करवाया, इन्हें भागने मत दो, इन्हें कत्ल भी न करो, जिंदा पकड़ कर लाओ। इस ऐलान का कुफार पर एक असर तो ये हुआ कि उन्होंने भागने की बजाय हथियार डालने शुरू कर दिए। बाज ने खौफजदा होकर भाग उठना बेहतर समझा। मुसन्ना के सवारों ने उन्हें घेर घेर कर पीछे लाना शुरू कर दिया। जंग खत्म हो चुकी थी। मैदान जंग लाशों और तड़पते और बेहोश जख्मियों से अटा पड़ा था। एक तरफ वो खाना महफूज पड़ा था जो दुश्मन के लश्कर के लिए तैयार किया गया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन खाने पर बैठ गए। जो सिपाही भागने वालों को पकड़ पकड़ कर ला रहे थे वो भी खाना खाने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन से कहा, अल्लाह ने ये खाना तुम्हारे लिए तैयार करवाया था, इत्मीनान से खाओ। मुसलमान मुख्तलिफ खाने देख देख कर हैरान हो रहे थे। उन्होंने ऐसे खाने पहले कभी नहीं देखे थे। वो जौ की रोटी, ऊंटनी का दूध और खजूरें खाने वाले लोग थे। मौरखों ने लिखा है कि दुश्मन के जिन आदमियों को जिंदा पकड़ कर लाया जा रहा था उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से खसीफ के किनारे ले जाते और उनके सर इस तरह काट दिए जाते कि सर दरिया में गिरते थे। उनके धड़ इस तरह किनारे पर फेंके जाते कि उनका खून दरिया में जाता था। इस तरह कत्ल होने वालों की तादाद हजारों के हिसाब से थी। गैर मुस्लिम मौरखों और मुबस्सिरों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस हुक्म को जालिमाना फेल कहा है, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि उन्होंने खुदा से अहद किया था कि वो कुफार के खून का दरिया बहा देंगे। दरिया के ऊपर बंद बंधा हुआ था जिसने दरिया का पानी रोका हुआ था, इसलिए खून दरिया में जमता जा रहा था। किसी ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया कि खून का दरिया सिर्फ उस सूरत में बहेगा कि बंद खोल दिया जाए। चुनाचे बंद खोल दिया गया। जब इतना ज्यादा खून पानी में मिला तो पानी सुर्ख हो गया और खून का दरिया बहने लगा। इसलिए तारीख में उस दरिया को दरियाए खून लिखा गया है। बाज मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच निकलने वालों और हथियार डालने वालों का कत्लेआम इसलिए करवाया था कि ये सिपाही एक जंग से भागकर अगली जंग में फिर सामने आ जाते। इसका इलाज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सोचा कि दुश्मन के किसी एक भी सिपाही को जिंदा न रहने दिया जाए। कहते हैं कि 3 दिन आतिश परस्तों और ईसाइयों को कत्ल किया जाता रहा। इस तरह कत्ल होने वालों की तादाद मिलाकर दरियाए खून की जंग में जो आतिश परस्त और ईसाई मारे गए वो तादाद 70,000 थी। शहंशाह फारिस उर्द शेर जो नौशरवां आदिल का परपोता था ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था जो शाही तबीबों के काबू में नहीं आ रहा था। इतना तो वो जानते थे कि पै दर पै 3 शिकस्तों का सदमा है, लेकिन सदमा आखिर जिस्मानी मर्ज की सूरत इख्तियार कर गया था। इसका इलाज दवाइयों से होना चाहिए था, लेकिन जो मालूम होता था कि जैसे वो दवाइयों को नहीं बल्कि दवाइयाँ उसे खा रही हों। उर्द शेर पर खामोशी तारी हो गई थी। वो जो अपने वक्त का फिरौन था शहर के दिए की तरह टिमटिमा रहा था। तबीब इस कोशिश में लगे रहते थे कि उर्द शेर तक जंग की कोई बुरी खबर न पहुंचे, लेकिन ये मुमकिन न था। वो जब बोलता था तो यही बोलता था कि आगे की क्या खबर है। तबीब जो हर वक्त हाजिर रहता था उसे जवाब देता खबरें अच्छी आ रही हैं, और उसे सदमे से बचाने के लिए कहता मुसलमान पछता रहे हैं कि वो किस देव को छेड़ बैठे हैं। कभी कहता फारिस की शहंशाही एक चट्टान है, इससे जो भी टकराया उसने अपना सर फोड़ लिया। और कभी उसकी चहीती मलिका ये कहकर उसका दिल मजबूत करती अरब के बद्दू किसरा के जाहो जलाल की ताब नहीं ला सकते। इन तसल्लियों और इन हौसला अफजा अल्फाज का किसरा उर्द शेर पर दवाइयों की तरह उल्टा ही असर हो रहा था। उसकी खामोशी न टूट सकी और उसके चेहरे पर उदासियों की परछाइयां कम होने की बजाय गहरी होती गईं। उसकी मनपसंद रक्कासा ने उसके सामने हसीन नागिन की तरह अपने जिस्म को बहुत बल दिए। उसने अपना जिस्म नीम उरिया किया। उर्द शेर के अलील चेहरे पर अपने इत्रबीज रेशम जैसे मुलायम बालों का साया किया। फिर उरिया होकर रक्स की अदाओं से किसरा के रोगी वजूद को सहलाने के जतन किए, मगर ऐसा लगता था जैसे मोरनी जंगल में नाच रही हो और नाच का तिलिस्म जंगल की हवाओं में उड़ता जा रहा हो। उसकी पसंदीदा मुगन्नियां जो उर्द शेर को मशहूर कर लिया करती थी उसका सहर भी रायगां गया। ये रक्कासा और मुगन्नियां फारिस के हुस्न के शाहकार थे। फारिस का हुस्न तो किसरा के हरम में फूलों की तरह खिला हुआ था। उन फूलों में अध खिली कलियां भी थी। उर्द शेर उनके मखमली जिस्मों की बूबास से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बनाया गया तो उर्द शेर ने किसी को भी कबूल न किया। उसके सर्द जिस्म में नौखेज जवानी की तपिश जरा सी हरारत भी पैदा न कर सकी। मलिका ने बाहर आकर उस बूढ़े शाही तबीब से कहा बेकार है, सब बेकार है। तबीब जिसके मुताल्लिक फारिस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रिंधी हुई आवाज में उसे कहा क्या आपका इल्म और तजर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है?
क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत के मुंह मोड़ दिया करते हैं? बूढ़े तबीब ने कहा, जरतुश्त की रहमतें हों तुझ पर मलिका फारिस। न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजुर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, लफ्ज, महज लफ्ज, खोखले अल्फाज, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा, नहीं मलिका फारिस, और कांपते हुए हाथ से मलिका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को नहीं मिटा सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलिम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए उन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। मलिका ने कहा, हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं, मैं इन्हें रक्स नगमे से बहलाने की। बूढ़े तबीब ने बात काटते हुए कहा, कब तक? मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्म मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्द शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी है। उनके घोड़े के सुमो ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारिस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को इन्होंने रूमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्द शेर बेदार हो गया है। अब रक्स नगमा और ये तिलिस्माती जवानियां उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगन्निया को नहीं हरमस को बुलाते हैं, अंदर जिगर को पूछते हैं, बहमन जाजुया और अनुश जान को पुकारते हैं। कहाँ है उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? मलिका ने आह भर कर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरस्कार ताकत है जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़े मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीने वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। तबीब ने कहा, ये अकीदे की ताकत है मलिका फारिस। मलिका ने पूछा, तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? बूढ़े तबीब ने कहा, नहीं मलिका फारिस, एक बात कहूंगा जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलिका किसरा? मलिका ने जवाब दिया, नहीं बुजुर्ग तबीब, मैं नहीं समझी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है। तबीब ने कहा, और उसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका किसरा। आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहनशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला रहा है। उन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माल गनीमत तो है ही नहीं, फिर हम लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से माहाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। मलिका ने कहा, और मुसलमान? तबीब ने कहा, मुसलमान मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब नहीं। वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बढ़े आ रहे हैं। मलिका फारिस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजुर्बे की बात करता हूँ। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता है और इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड्ढे में फेंक देता है। मलिका ने कहा, मैं नहीं समझ सकती, मैं समझना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहतयाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। तबीब ने कहा, कुछ नहीं हो सकता मलिका फारिस, कुछ भी नहीं।
सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांध कर किसरा के दरबार में ले आओ तो किसरा उठ खड़े होंगे। मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, ऐसी खबर मैं कहाँ से लाऊं? मदीना के उस सालार को कैसे जंजीरों में बांध कर ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगे जमीन में गाड़ कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। ये कहकर वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई। बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थी, चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं घबराहट भी थी। मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, कोई अच्छी खबर लाए हो तो उठो और फौरन बताओ। कमानदार ने हाँफती हुई आवाज में कहा, कोई अच्छी खबर नहीं। मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरियाए खसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया है कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था। मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो वो खून का दरिया बन गया। मलिका ने गजबनाक आवाज में पूछा, तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? कमांडर ने जवाब दिया, मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आया हूँ। मैं छुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूँ। मलिका ने हुक्म दिया, खबरदार, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहनशाह फारिस को तभी उर्द शेर की आवाज सुनाई दी। शहनशाह फारिस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। मलिका ने और तबीब ने देखा, उर्द शेर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने उसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। उसने कमांडर को हुक्म दिया, यहाँ आओ। मैंने महसूस कर लिया था कि कोई आया है। कहो क्या खबर लाए हो? कमांडर ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। उर्द शेर ने गरज कर कहा, इधर देखो। बोलो। कमांडर ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। किसरा उर्द शेर आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। तबीब ने कहा, फारिस किसरा उर्द शेर से महरूम हो गया। महल में हड़बौंग मच गई। उर्द शेर की लाश उठाकर उसके उस कमरे में ले गए जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के उन लुटेरे बद्दुओं को फारिस की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई। उसने उसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हारिसा के बेटे मुसन्ना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही उस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर ना पहुंचने दी जाए। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।